fully functional facility of 72,000 SFT with 2 floors of parking located right at the center of city's IT hub. Workforce seating capacity of over 1,000 employees. We ensure that facility teams have a safe and comfortable work environment. From strategy to design, implementation and management, we are here to accelerate innovation and transform businesses. Especially small and medium enterprises are the ones that will be profited from our solutions by empowering them with modern technology to avert any competition from large global corporations. We at OnPassive believe innovation is the key to success and motivate our teams to drive excellence. OnPassive is the only total internet solution company with complete AI-driven applications and tools. One of the first ever robust smart business solution, a one-stop solution for all your innovative and technological necessities. OnPassive believes in uplifting humanity and turning business ideas into reality. The founder and the CEO, Mr. Ash Mufareh, has been an inspiration to all of us. With his constant mentorship, we have been able to build a passionate team which would drive us towards success. Our culture is a unique blend of values and skills that thrives on integrity and commitment to stand out as a champion in the industry. We nurture respect for individuals and freedom of thought to drive that extra mile to be a league of our own. OnPassive gives me the opportunity to accentuate the vision of the product and transform it into the reality. As a product owner, I am involved in defining the vision of the product from the development stage to the deployment stage. We here understand the stakeholders' need and prioritize action accordingly. Every business needs artificial intelligence, unleashing the power of AI with tens of products to suit all business needs. Our wide range of AI-based products and solutions aim to transform global enterprises digitally. My goal as a marketing head is to spread the OnPassive brand to reach people who love technology, to connect and capture the mind space of tech entrepreneurs spread across the world. It is a great opportunity as well as a challenge for the team to chalk out strategies and to activate marketing campaigns for a series of software products pertaining to diverse business verticals. And the team is ready to accept the challenge. The true essence of customer service is to provide world-class service, which is important in today's world. To win that is possible with simple but the best digital experience. Our passion is to get more engagement, to drive more people towards us. We focus on less operational processing and transform the business into a productive environment. We believe that customer experience is an important factor that truly needs to be a cross-functional system which can tackle any feedback given by the customer. As a delivery head, I am responsible for initiating the sprint planning for every product by taking inputs from technical and solution heads. Each product implementation has multiple sprint iterations. I oversee the entire process from inception to the product implementation and give respect to estimation. A top talent pool of OnPassive brings with years of technical experience and expertise. Kickstarting my journey with OnPassive as an infrastructure manager is the best decision in my life. With 14 years of experience in networking and communication, I hope to make business operation more interconnected and efficient. Our contributions can stand against the dynamic technological progressions of the current times. New incremental updates are moved to the cloud, which helps you to get the most advanced and sophisticated technology to operate your enterprise. OnPassive, as an organization, appreciates its employees for their hard work and makes sure that they have a great time while they're at work. I believe
OnPassive has a wonderful approach towards its employees and their well-being. Our AI technology services are easy to use, adapt, and scale, making our clients successful in a fully connected world. The goal of OnPassive is to make a one-stop solution for all internet users. With OnPassive, everything that you can imagine is possible. We will make it happen, and we will see you at the very top. We help our clients to build stronger customer relationships, drive sales, identify new opportunities, and analyze marketing results to enhance their business. Passive, in it to win it. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के इस ओपन प्लान प्रेजेंटेशन में मैं सबको वेलकम बोलता हूं। मेरा नाम अब्दुल वहाब यासिर है और मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूं। वंस अगेन मैं आने वाले तमाम मेहमानों को इस प्रेजेंटेशन में खुशामदीद बोलता हूं। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिस पूजा राव, जबलपुर से इनका ताल्लुक़ है और स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये आज तशरीफ़ लेके आई हैं और आज हम मैक्सिमम टाइम मिस पूजा राव को देंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी शेयरिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज अगेन हमें फिर से मौका मिलेगा। मिस्टर वसीम अनवर, लाहौर पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, जो कि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। जी वसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वेबिनार जैसा कि आप सब जानते हैं कि OnPassive से मुतल्लिक है। आज हम OnPassive के बारे में जानेंगे। आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिसिस पूजा राव, जिनका ताल्लुक जबलपुर से हैं। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये एक OnPassive की बहुत पुरानी फाउंडर हैं। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी और ये OnPassive के ऑनर मिस्टर ऐश मुफारिक उस कोड को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। OnPassive इज करेक्शन ऑफ करप्शन। और जी पूजा जी, आप कैसी हैं? आपका बहुत वेलकम। थैंक यू वसीम जी, बहुत अच्छी लग रही है प्लेटफॉर्म में आई हूँ आज। तो आज आपके बारे में, आपकी OnPassive के बारे में राय तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ एक छोटी सी बिजनेस प्रेजेंटेशन मैं लोगों को बता दूं, उन लोगों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म में नए आए हैं, ताकि वो आपकी बात को उन्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आने वाले तमाम लोगों को वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया में हम सब लोगों की कोई ना कोई प्रायोरिटीज होती हैं, तरजीहात होती हैं, जिसमें से एक प्रायोरिटी ये होती है कि आपका अपना बिजनेस हो और आपका अपना घर हो, अपना कार हो और आप दुनिया में सफ़र करें और आप रिटायरमेंट के बाद हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो और टाइम की फ्रीडम हो, यानी आप बस फाइनेंशियल की चक्की में पिसते ना रहें और आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले और आपके पास इतना पैसा हो आप दूसरों को, लोगों की मदद कर सकें, चैरिटी कर सकें, सोशल एक्टिविटी का पार्ट बने। लेकिन ये सारी बातें सोचने के बाद आपके जहन में एक बात आती है, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। दो तरह के काम करने के तरीके होते हैं। एक हार्डवर्क होता है, जिसमें जैसा कि मजदूर होता है कि वो दिन भर मेहनत करता है, काम करता है, पैसा कमाता है और खर्च कर देता है, लेकिन जिस दिन वो काम ना कर सके उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और ये तरीका तो बिल्कुल फ्लॉप है। और दूसरा तरीका होता है स्मार्ट वर्क,
जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं 2 या 3 साल में, और उस जैसे कि आप एक दुकान बना लेते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उसमें हम कुछ लोग सिस्टम में रखते हैं और वो आपके लिए काम करते हैं, जहां आपको फाइनेंशियल आज़ादी मिलती है, और आप जिस किसी दिन छुट्टी कर भी लें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन ये होता है कि हर बंदा हर सिस्टम नहीं बना सकता, हर हर शख्स के पास इतना नॉलेज नहीं होता, इतना दिमाग नहीं होता वो कोई सिस्टम क्रिएट करे, या उसके बाद इतना फाइनेंस हो कि वो इन चीज़ों को आगे फॉलो कर सके। लेकिन अगर सिस्टम ही आपके पास आ जाए तो आपको कितनी आसानी हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव एक मैसिव मूवमेंट है, यानी बहुत बड़े पैमाने की तहरीक है। ये एक को छोटा मोटा को वेबसाइट बेस्ड काम नहीं है, ये गूगल की तरह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि अभी प्री लॉन्च सिचुएशन में है। अभी ये कंपनी लॉन्च नहीं हुई, लेकिन इसकी धूम हर जगह मची हुई है। इसका जो विजन है वो ये है कि ह्यूमैनिटी की बात करता है, और यहाँ पर हर बंदा कामयाब है, चाहे वो कितना बड़ा, चाहे वो टॉप पर हो, चाहे वो टॉप पर ना हो, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो। यहाँ पे बिजनेसमैन भी कामयाब है, दूसरा शख्स भी कामयाब है। उनका मिशन है आईटी को आगे फरोग करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमें आगे को मूव करना। अगर ऑन पैसिव के ऑनर की बात की जाए, इनके ऑनर का नाम है मिस्टर ऐश मुफारे, जो कि एक फैमिली मैन है और एक अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, जो कि इससे पहले किसी ऑनर ने, किसी सीईओ ने ये बात नहीं की। उनका 20 साल का ऑनलाइन बिजनेस का तजर्बा है। ना सिर्फ तजर्बा है बल्कि उनके पास एजुकेशन भी है, वो क्वालिफाइड भी हैं, वो मास्टर डिग्री है उनके पास MIT की ई कॉमर्स में। और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल में काम भी किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन का क्लासेस ली हैं, और अमेजोन जैसे जगहों पर रिसर्च की है, और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। यानी वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर का तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया, और देन ये उनकी पहली कंपनी है। कंपनी का मेन ऑफिस जो है ऑरलैंडो फ्लोरिडा में है, अमेरिका में है, और इनका दूसरा ऑफिस जो है इंडिया हैदराबाद में, जो कि प्रोडक्शन ऑफिस है। हैदराबाद इंडिया में 5 मंजिला अपनी बिल्डिंग है, जहाँ पे 600 प्लस स्टाफ काम कर रहा है। अगर ऑन पैसिव जर्नी की बात की जाए, 2018 में इसका सफर शुरू हुआ था डिजिटल मार्केटिंग से, यानी ग्रेजुअली इसने अपने आप को अपग्रेड किया। 2018 में डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट लिया, और देन 2019 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया। देन उन्हें पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे काम बड़ा क्विक और फास्ट होगा, तो उन्होंने तय किया वो इंटरनेट की तमाम प्रोडक्ट बनाएंगे और लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और एक ही प्लेटफॉर्म से करेंगे। और 2019 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड की, देन डिजिटल मार्केटिंग के बजाय उन्होंने डिजिटल तमाम प्रोडक्ट को बनाने का फैसला किया। उनका पहला ऑफिस अपना कलकत्ता इंडिया में था, जो 2018 में था। उसके बाद 2019 में वहाँ से मूव करके और हैदराबाद इंडिया में उन्होंने अपना एक 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की, और वहाँ पर 600 प्लस स्टाफ काम कर रहा है, जो कि ऑन पैसिव के लिए बड़ी दिन रात मेहनत कर रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल का नाम कैटमो दिया गया है। कैटमो एक्चुअली एब्रिविएशन है, वो 4 चीजें, वो 4 पिलर जिसकी कंपनी बात करती है। C फॉर कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन, यानी आपको यहाँ कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन मिलता है, यानी इंटरनेट की तमाम चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलती हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप जहन में सोचे और आपको यहाँ ना मिले। और दूसरा A फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी नॉर्मली आपको कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटेड, हर काम ऑटोमेटिक होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, और रोबोट आपके बिहाफ पर काम करेंगे। T फॉर ट्रैफिक से मुराद है, टारगेटेड ट्रैफिक से मुराद है कि नॉर्मली आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो जो लोग विजिट करते हैं आपकी वेबसाइट में, वो आपकी ट्रैफिक होती है। आपको नॉर्मली ट्रैफिक आपको बाय करना पड़ती है वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए, और काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगी, यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रोबोट आपके बिहाफ पर काम कर रहे हैं और ट्रैफिक जनरेट करके लाएंगे। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो M फॉर मनी फॉर एवरीवन, सब लोगों को पैसा मिलेगा। यानी कितना सिंपल प्लेटफॉर्म है, कितना सिंपल पिलर है इसके, कितना सिंपल बिजनेस मॉडल है। यूनिक बिजनेस मॉडल है। यूनिक इसलिए कहा जाता है, इससे पहले जो बिजनेस मॉडल थे वो सिर्फ टॉप के लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को कामयाब करते थे। छोटा आदमी नाकाम हो जाता था, वो कोशिश करता था लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाता था। यहाँ पर चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे नॉन बिजनेसमैन हो,
वो दोनों लोग कामयाब हैं। हाउ ऑन पैसिव बिजनेस मॉडल इज सक्सेसफुल, यहाँ पर मैं बताऊंगा ऑन पैसिव बिजनेस मॉडल कैसे कामयाब है। पहली इसकी कामयाबी की वजह है बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट। ये म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है, एक दूसरे के फायदे की बात करता है, जबकि इससे पहले बिजनेस मॉडल इसलिए नाकाम हो गए कि वो अपने फायदे की बात करते थे। जब आप किसी को बांटते हैं तो आपका फायदा उससे ज्यादा होता है। तो ये इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। एवरीथिंग इन हाउस, आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सब चीजें मिल जाएंगी। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको डोमेन के लिए किसी और कंपनी से रब्ता करना पड़ता है, होस्टिंग के लिए कहीं और, ईमेल मार्केटिंग टूल के लिए अलग रब्ता करना पड़ता है। यानी आपको एक जगह से चीजें नहीं मिलती, कहीं से दो चीजें मिल जाए तीसरी नहीं मिलती। यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सब चीजें मिलेंगी। इनका विजनरी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर डेडिकेटेड लीडरशिप है। यानी 2018 से इनकी लीडरशिप काउंसिल के मेंबर वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि उस विजन को फॉलो कर रहे हैं, वो ऑन पैसिव के विजन को देख पा रहे हैं। उनका पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, रियल बिजनेस है, रियल पीपल है, रियल प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि आपको कोई चीज बेचनी है, सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं तो उसी को यूज कर रहे हैं और आप कमा रहे हैं। आपको मार्केट में कोई चीज नहीं बेचनी, इजी प्लग एंड प्ले सिस्टम है। एक ही सिंपल इंटरफेस पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको और ऑटोमेटिक हर चीज आपके लिए होगी और तमाम टूल्स एक ही कम कीमत पर आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छा फीचर जो है 30 दिन की मनी बैक गारंटी, जो कि ऑफिशियली कंपनी कहती है, लेकिन देखा गया है जो 30 दिन से ज्यादा भी लोगों ने रिफंड के लिए मांगा है, कंपनी ने पैसा वापस किया है। आज तक कोई भी कंपनी पैसा लेकर वापस नहीं करती। यहां से इस कंपनी के ट्रांसपेरेंट होने का सबूत मिलता है। इनका जो रेजिडुअल इनकम प्लान है वो बहुत अच्छा, यानी आप प्रोडक्ट बाय करेंगे और पैसा कमाएंगे भी। इससे अच्छी बात क्या होगी। डेट फ्री कंपनी है, यानी कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। कंपनी के जो ओनर हैं मिस्टर ऐश मुफारे, उनके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स, को फाउंडर, उन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई और हैदराबाद इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रही, जो भी सैलरीज वगैरह वो अपनी जेब से दे रहे हैं। ग्लोबल सपोर्ट है उनको, ग्लोबल कंपनी है और सपोर्ट उनका सिस्टम है। लेजिट कंपनी है, लीगल कंपनी है, लाइसेंस्ड है और 212 मुल्कों में रजिस्टर्ड है। लोगों के बुरे एक्सपीरियंस को देखकर ये कंपनी का मॉडल तैयार किया गया है। बुरे एक्सपीरियंस से बात यह है कि इससे पहले जो लोगों को कायल करना पड़ता था, कन्विंस करना पड़ता था, लेकिन वह नाकाम रहते थे और वो बिजनेस फेल हो जाता था उनका। यहाँ पर जो बोर्ड आपके लिए टीम तैयार कर रहे हैं, बोर्ड आपके लिए काम कर रहे हैं और आपके रियल इशू पर काम हो रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप ज्वाइन करते हैं, जब कंपनी लॉन्च होगी, तो आपने जस्ट लॉग इन करना है और अपना कमीशन कलेक्ट करना है और अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर करना है। फ्यूचर सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। फ्यूचर सुपर यूनिकॉर्न कंपनी को कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम यूनिकॉर्न को समझते हैं। यूनिकॉर्न क्या चीज होती है। यूनिकॉर्न कंपनी वो चीज होती है जो लॉन्च होने के 10 साल के अंदर अपनी जो उसकी वर्थ है $1 बिलियन प्लस हो जाए। और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो लॉन्च होने के 10 साल के अंदर उसकी वर्थ $100 बिलियन हो जाए। तो ये कंपनी यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न है, यानी इसकी अभी इसकी जो वर्थ है करंटली, अभी ये कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई, इसकी बिलियंस में है और ये भी से यूनिकॉर्न है, अभी ये कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई। इट्स मीन के विद इन 1 ईयर जो एक्सपर्ट जो एस्टिमेट लगा रहे हैं, ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी साबित होगी। व्हाट आर बेनिफिट्स इफ यू पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। हम अगर ऑन पैसिव का पार्ट बनते हैं तो क्या फायदा है। पीछे जो बेनिफिट तो आपको बता दिए। एक फायदा ये है, आप कोई भी काज, कोई भी चैरिटी, कोई भी सोशल एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो फंड सोल्यूशन के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म में ओबलेस है और यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट मिलेगी। आपको विड्रॉल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और डेली पे होगा आपका रेजिडुअल इनकम। मजेदार बात है, टॉप मार्केटिंग ऑटोमेशन डन फॉर यू। जब आप सस्ती प्रोडक्ट और अपडेटेड प्रोडक्ट देंगे तो बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर मर्ज होंगे और रोबोट ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा उन कंपनी के लिए और आप अर्न करेंगे। गारंटेड विजिटर्स एंड साइन अप। गारंटेड विजिटर इसलिए कहा जाता है, जब आप मैन्युअली किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपको विजिटर आते हैं और आप लाखों रुपए कमाते हैं। तो यहाँ पर तो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, तो विजिटर तो गारंटेड ही है। कितने होंगे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन विजिटर बहुत आएंगे क्योंकि कंपनी का सिस्टम इस तरह का है। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ रिवील होंगी। अगर ऑन पैसिव की वैल्यू की बात की जाए तो ऑन पैसिव के जो ओनर हैं मिस्टर ऐश मुफारे, उनके बारे में यही कहा जाएगा जैसा कि
फेसबुक के क्रिएटर के बारे में कहा जाता है, या टेस्ला के, या अमेजोन के, तो ये ऑन पैसिव के बारे में भी यही कहा जाएगा, ऐश मुफारा क्रिएटेड ऑन पैसिव, यानी इस वैल्यू की ये कंपनी है। ऑन पैसिव की प्रोडक्ट्स जो हैं, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इनके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या हैं। यहाँ पे आपको किसी को प्रोडक्ट बेचनी नहीं है, ना किसी को रिक्रूट करना है, ना कोई लीड जनरेट करनी है। आपको सब काम ऑटोमेटिक होगा, गारंटेड ट्रैफिक होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक ही लॉगिन में सारी चीजें मिल जाएंगी, इजी टू यूज है, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, और कस्टमर की आपको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगी आपको। और डेवलप विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये चीजें बनी हुई हैं। ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोज़मर्रा जिंदगी में यूज कर रहे हैं और बहुत महंगी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ प्रोडक्ट की बात करूँ तो ओ अकेडमी है जो कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ओ ब्लेस है जो कि चैरिटी प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। ओ कनेक्ट जो है जूम की तरह का एप्लीकेशन है। अब ओ कनेक्ट के बारे में थोड़ा बता दो। जूम इस वक्त हम यूज कर रहे हैं, अगर 100 तक तो फ्री होता है, लेकिन अगर हमें 10,000 लोग इन्वाइट करने पड़े तो $6,500 आपको पर मंथ पे करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये पे करती हैं जब वेबिनार कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट जब बाय करेंगे, जब ये कंपनी लॉन्च होगी जिसकी प्राइस 200-300 के दरमियान में होगी, तो आपको 50 करीब प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि बाद में बढ़ती भी जाएंगी। तो होगा ये कि आपको इतनी कम कीमत में ये तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो लोग ये प्रोडक्ट्स, महंगी प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि फाउंडर्स, कस्टमर्स और रीसेलर्स में क्या फर्क है। फाउंडर्स वो लोग हैं जो कि कंपनी लॉन्च होने से पहले कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं $97 देकर, और जैसे ही कंपनी लॉन्च होगी जिंदगी भर कोई फाउंडर नहीं बन सकेगा, फाउंडर को बेनिफिट मिलेगा। फाउंडर जब कंपनी लॉन्च होगी तो कस्टमर्स आएंगे जो कि प्रोडक्ट बाय करेंगे, फाउंडर भी कस्टमर बाय करेंगे, यानी फाउंडर कस्टमर भी बनेंगे। रीसेलर वो होते हैं, और कस्टमर रीसेलर का फर्क बता दो। कस्टमर्स वो होते हैं जो चीजें बाय करते हैं, रीसेलर वो होते हैं जो कि चीजें बाय करके दोबारा बेचते हैं और कमाते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर्स होंगे वो रीसेलर भी होंगे, क्योंकि जब कस्टमर चीज बाय करेंगे तो कंपनी उनके लिए काम करेगी, उनकी रेजिडुअल इनकम बनेगी, उनको नेक्स्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो उनको ऑटोमेटिक पे कर दी जाएगी, यानी वो सिर्फ एक ही बार पे करेंगे। और फाउंडर को ये तीनों चीजों का फायदा होगा। फाउंडर प्राइस जो है इस वक्त अगर आप ज्वाइन करते हैं $97 है, और अगर आप आफ्टर सेमी लॉन्च ज्वाइन करते हैं तो उसकी कीमत अभी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन बढ़ भी सकती है, यही भी रह सकती है। और सेमी लॉन्च क्या है, जब मेन लॉन्च होगा उसे ग्लोबल मेन लॉन्च का नाम दिया गया, और सेमी लॉन्च इससे पहले होगा जहाँ पे तमाम डिजिटल प्रोडक्ट की बीटा टेस्टिंग होगी और हम बीटा टेस्टर होंगे। और जैसे ही कंपनी लॉन्च होगी तो हमें प्रोडक्ट बाय करनी होगी जिसकी प्राइस $200 और $300 के दरमियान में होगी। ये देखने में तो आपको ज़्यादा शायद प्राइस लग रही हो, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, आपको मिलेगा इतना ज़्यादा कि आपको एक ही बार ये कीमत पे करनी है। वैसे तो ये प्रोडक्ट प्राइस मंथली आपको पे करनी है, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम अपने पॉकेट से देना है। उसके बाद जितने भी मंथ आपने पे करना है वो ऑटोमेटिक रोबोट के जरिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दिया जाएगा। इस तरह $97 की बात करें तो वो आपको हर साल पे करना है, लेकिन आपको एक ही बार अपनी जेब से देना है, अगले साल ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट में से वो चीज़ चली जाएगी। फाउंडर के बेनिफिट ये हैं कि सारे साल मार्केटिंग कैंपेन्स होंगी आपके लिए, आपको एक वेबसाइट मिलेगी और आपके लिए नेटवर्किंग होगी और आप अर्न करेंगे। इसके अलावा एडिशनल ट्रैफिक पैकेज भी बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन जो कि बाय कर सकेंगे ट्रैफिक लाने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए। लेकिन अभी जो करंटली कंपनी पैकेज दे रही है वो आपके लिए काफ़ी अर्निंग करने के लिए काफ़ी होगा। फाउंडर के एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो ये है कि आप गो फाउंडर्स की वेबसाइट में एक्सेस होगी और आप पब्लिक से पहले आएंगे और आप कंपनी के इनर सर्कल में होंगे, आपको प्रायोरिटी पोजीशनिंग दी जाएगी। बीटा टेस्टर होंगे। बीटा टेस्टर के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको खुद टेस्ट करता है, उसे अल्फा टेस्टिंग बोला जाता है। जब वो पब्लिकली कुछ लोगों से टेस्ट करवाता है उसे बीटा टेस्टिंग बोला जाता है, ताकि वो उसके एरर और बग्स चेक की जाए। तो यही बात है, जब हम बीटा टेस्टर बनेंगे तो हम वो तमाम प्रोडक्ट को यूज करने का हमें मौका मिलेगा।
इसके अलावा आपको प्रायोरिटी एक्सेस दी जाएगी, आपको सजेशन देने का मौका मिलेगा, आइडियाज वोट देने का मौका मिलेगा, राउंड टेबल टॉक में आप शामिल होंगे और फीडबैक दे सकेंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगा आपका लॉन्च होने के बाद? तो काफ़ी तरीक़ेकार होंगे, जिसमें से कुछ मैं बता देता हूँ। मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए कमाएंगे, ट्रैफिक पैकेज बाय करके कमाएंगे, पर्सनल एफर्ट से कमाएंगे, जब आपके साथ ब्रांड मर्ज होंगे तब आप कमाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ रिवील होंगी, यानी एक तरीका नहीं कमाने का। आपका लेफ्ट से अर्निंग आ रही होगी, राइट से अर्निंग आ रही होंगी, आप हैरान होंगे कि ये कहाँ से पैसा आ रहा है। आखिर में इस कोट के साथ मैं ये बात खत्म करता हूँ। मिस्टर ऐश मुफारे का कोट है, ऑन पैसिव फॉर करेक्शन ऑफ करप्शन, यानी हम यहाँ करप्शन की करेक्शन के लिए मौजूद हैं। इससे पहले करप्शन क्या थी कि फेसबुक और ऐसे यूट्यूब जैसे मीडियम आप उनको यूज़ कर रहे थे और वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं दे रहे, आपसे इतना बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहीं पे मैं प्रेजेंटेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी पूजा जी, हम आपके बारे में एक तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, ऑन पैसिव का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो हम लोग जानना चाहते हैं। जी, वेलकम टू माय वेबिनार। थैंक यू एंड हेलो एवरीवन। ऑन पैसिव के बारे में मैं जितना भी बात करूं, मेरे को लाइक वर्ड्स ही नहीं खत्म होने वाले जैसे एक चीज हुआ है आज के दिन के लिए, बिकॉज मेरे लाइफ में ऑन पैसिव बहुत मेजर रोल प्ले किया है। मैं लास्ट ईयर लाइक 2020 का इसमें जुलाई के टाइम में मिसकैरेज हुआ था बेबी का, और घर पे डिप्रेशन में थी। एंड उस टाइम में एक डैडी का एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने मेरे को ऑन पैसिव के बारे में, एक्चुअली डैडी को बताया गया था, डैडी लेकिन टेक्नोलॉजी इतना समझते नहीं है, तो उस वजह से उन्होंने मेरे से पूछा था क्या है क्या नहीं है, देख ले समझ ले तू। तो उस वे से मेरे को मिला था प्लेटफॉर्म, लाइक डैडी के थ्रू उनके फ्रेंड से। तो जब मैंने समझ गई कॉन्सेप्ट को, तो वो टाइम में कोरोना चल रहा था, सारा का सारा लॉकडाउन लगे हुए थे। तो एक यूजुअली हम लोग जब भी कॉन्सेप्ट ऐसे सुनते हैं, एक माइंड में आती है शायद स्कैम हो सकती है, तो वही माइंडसेट में मैं थी स्टार्टिंग में। बट उस दिन जिस दिन कॉन्सेप्ट सुनी थी, उस रात को मैं इतना परेशान थी कि इन केस ये कॉन्सेप्ट सही निकले, बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट तो आज तक मार्केट में किसी ने लॉन्च नहीं किया, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। इन केस ये सही हुआ तो मेरा हर प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन था। तो मेरा ये सोच जब थी, तो मैं फिर फाइनेंशियली भी उतना स्ट्रांग नहीं थी, बिकॉज ऑफ जैसे कि हम लोग कपड़े का दुकान चलाते हैं, एंड पूरा का पूरा हम लोग का लाइक 2 ईयर से ऑलमोस्ट शॉप भी बनते, सो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग भी नहीं थे। तो मेरा माइंड में एक डाउट था कैसे क्या करूं, और उसी टाइम में लाइक मेरी सासू माँ ने मेरे को हिम्मत दी है। उन्होंने बताया बेटा तेरे को करना है, तेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, तो मैं तो हूँ करने के लिए। तो उनके हिसाब से मैंने उनको ये भी बोली थी, मेरे को पता नहीं है कि ये सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरे को कुछ नहीं पता है, हाँ लेकिन ये बात बोल तो रहे कि रिफंड पॉलिसी है। तो मेरा एक डबल माइंड का जो है, मैं उस डबल माइंड से इसमें इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में। बट ये मैंने लाइक अगस्त एंडिंग में की थी लास्ट ईयर, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर हो गई इस प्लेटफॉर्म से। सितंबर में मैंने एक वेबिनार अटेंड की थी जिसमें एड सर आए थे। वो फर्स्ट मेरा इंग्लिश वेबिनार था जो मैंने अटेंड किए थे। और सबसे पहले मेरे को जो इस प्लेटफॉर्म का सर की जो उधर उस मीटिंग में जो 2 कॉन्वर्सेशंस हुए, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था, जिस वजह से मैंने सोचा था कि ये ऑन पैसिव के बारे में सर जो इसको बिल्ड कर रहा है, सर जब उनकी माइंड में ये थॉट है तो कभी ये कंपनी स्कैम नहीं हो सकते। वो बात थे फर्स्ट करेक्शन टू करप्शन। मैं हर वेबिनार में ये बात बताती हूँ, कोई कंपनी का ओनर मैक्सिमम हम देखते हैं तो वो अपने बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए देखते हैं, अर्निंग्स करने के लिए देखते हैं, उनको करप्शन से रिलेटेड कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इधर हर मीटिंग में सर बोलते हैं ये करेक्शन टू करप्शन रहेगा। दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई लाइक्ड, जो मेरे मन को छू गई थी। और सेकेंड थिंग, उन्होंने उस मीटिंग में एक ह्यूमैनिटी के बारे में उन्होंने जो आइडिया दिए, उन्होंने वो मीटिंग में ये बताए थे जो वो पर्सनली करते हैं। जहां लेफ्ट ओवर फूड है
वो जब एक स्टोर विजिट किया, उधर वेस्ट केक्स था, वो उन्होंने बात किए तो उनको पता चला वो वेस्ट केक्स को एंड ऑफ द डे उसको फेंका जाता है, ताकि और किसी को ये नहीं है कि गरीब को खिलाए वो शॉप वाले, बिकॉज उनका रूल्स है कि वो किसी को दे नहीं सकते। तो उस दिन से सर ने जो एक्यूमुलेट करके हर एक शॉप से वो लेके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब करना स्टार्ट किया। ये मेरा माइंड ऑफ थिंकिंग चेंज किया। मेरे को लगा हाँ, कैश ही सब कुछ नहीं है कि आप हेल्प करना चाहोगे तो। ये माइंड ऑफ थिंकिंग जो इधर चेंज होती है ना ह्यूमैनिटी की तरफ से, उनकी ये दो कॉन्सेप्ट सुन के मैं बहुत अट्रैक्ट हुई थी। ऐसा मेरा ऑन पैसिव में जर्नी स्टार्ट हुए थे। एंड बहुत सारा उसके बाद जैसे कि इद्रिस सर मुझे मिले और मैं ब्लैंक थी उसके बाद। हाँ, मेरे को इतना पता था कि ऑन पैसिव मैंने ज्वाइन की हूँ, वो राइट प्लेटफॉर्म है, कोई ये नहीं है ये नहीं है। फिर इद्रिस सर मिले थे, इद्रिस सर मेरे को गाइड किए कि आप अपने आप को ग्रूम करो। मैं बहुत हेसिटेट करती थी कि वेबिनार्स में आओ, बात करना, ये सब मेरे से नहीं होती थी। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था और जूलियन माइलो शो को इंट्रोड्यूस करके दिया था। और जूलियन माइलो शो में मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिले थे जहाँ मैं कन्नड़ा में प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट की थी एंड मैं अपने आप को वेबिनार्स में हैंडल करने लायक हो गई थी। आई एम सो सॉरी, लाइट गई है इधर, पावर कट है। एंड उसी जूलियन माइलो शो का जो प्लेटफॉर्म मुझे मिले थे उसमें मेरा कॉन्फिडेंट 10 गुना ज्यादा, लाइक बोलते हैं ना, एक पंपिंग पॉइंट था मेरे लिए। एंड उधर से मेरे को कंफर्ट मैम के इंटरव्यू, चार्ल्स के इंटरव्यू, हर एक वेबिनार से करना स्टार्ट किया, टायरा मैम का इंटरव्यू, लाइक एक अपने आप बिल्ड होते गए। ऑन पैसिव मतलब क्या है सीखने का एक मौका मिला था। तो मैं इधर एक और चीज, मतलब हमारे स्किल्स जो डेवलप हो रही है, ये वैल्यू ऑन पैसिव हम, ठीक है अभी कैश नहीं मिल रही है, लेकिन आप एक्टिव हो तो एक वैल्यू एडवांटेज आपको मिल रही है। आप लोगों से बात करना सीख रहे हो, आप अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग थॉट्स को मिक्स करना जानते हो, जान पा रहे हो। लाइक ये अपने हमारे स्किल्स को ये ग्रूम कर रही है। तो ये बेनिफिशियल, मैं अभी एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होती है, आई एम सॉरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हम सब जानते हैं कि हम लोग को पे करना पड़ता है। उधर भी कुछ नहीं है तो आपको $100-150 तो आप उधर भी पे करोगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इधर आपको यही वैल्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ आपकी लाइफ भी सेटल हो रही है, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन मिल रही है, अलग अलग आइडियाज हमारे लाइफ में जीने के लिए मिल रही है। तो आप सोचो कि ऑन पैसिव का ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है कितना लार्जली बड़े होंगे। आई एम सॉरी, ओके। ऑन पैसे का जब भी मैं बात करती हूँ, एक और चीज, मैं हर एक लाइक कोई भी वेबिनार अटेंड करती हूँ, सबसे पहले लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं अटेंड करती हूँ, मैं इद्रिस सर का फॉलोअर हूँ तो एक स्टोरी तो बनती है। तो और ये स्टोरी मैं हर वेबिनार में शेयर करती हूँ। ऑन पैसे क्या है समझने के लिए है ना, तो बहुत इजी है। एक लड़का और लड़की है ना, एक लड़की को इंजॉर्ड रहती है, इंजॉर्ड होने के बाद वो रोड में साइड में बैठी रहती है। एक लड़का उसके पास जाके उसके लिए मदद करने का सोचता है, ठीक है। वो लड़का वो इंजॉर्ड लड़की को उठा के लेके जाता है। तो उधर एक ग्रुप ऑफ 5 लोग खड़े रहते हैं। वो 5 लोग अलग अलग वे से बात करते हैं, मतलब वो लड़का लड़की, एक बोलते हैं भाई और बहन हो सकते हैं, एक बोलते हैं लड़का वो लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक बोलते हैं नहीं नहीं बस फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो चौथा बोलता है कि नहीं 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 वो लोग है ना बेटी और पापा हो सकते हैं, ऐसा। सो 5 डिफरेंट लोग आपको, मतलब 5 डिफरेंट वेज में बात करते हैं। बट रियलिटी जो है ना, रियलिटी वो क्या है, वो लड़का और लड़की ही जानते हैं। और सेम चीज ऑन पैसिव में है। लाइक बाहर के दुनिया कितना भी कुछ भी बोले, कुछ भी बात करे, इधर 2 ही लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक ऑन पैसिव का जो सीईओ हमारा एसर है और दूसरी हम फाउंडर्स है। बिकॉज इधर हम लोग लड़का और लड़की, इधर एसर हमारे मदद के लिए आए हैं। वो चाहते थे, उसको बिल्ड करते थे, अपना इनकम वो खुद जनरेट करके अपने पास रखते थे। बट वो उनकी हार्ट ये बोलती है कि ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करो।
उसी रीजन से उन्होंने हमारे से शेयर किया है। बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत सारा कंपनीज है जो इनकम जनरेट करके बिना शेयर किए अपने बस वेल्थ बांटते जाते हैं। आज के दिन दुनिया में ऐसी है, एक कंपनी एक पूरा कंट्री को सेटल करने का ताकत रखते हैं, बट फिर भी वो लोग नहीं करते। बट ऑन पैसिव का ये सोचो, हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि ऐसा एक बंदा चाहिए जो ह्यूमैनिटी के बात करने से ज्यादा एक्शन से प्रूव करे, और ऐश सर एग्जैक्टली उनकी एक्शन से प्रूव करते हैं। वो ज्यादा बोलने वाले से नहीं है, वो जो उनके मन में कुछ नहीं रहती, वो जो वो सुनते हैं, जो वो उनको कमिटमेंट मिलती है, एग्जैक्टली वो हैज इट इज हमसे शेयर करते हैं, ये सोचते हुए ये अपने लोग हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर है हम क्या सोचते हैं उनके बारे में। मेरे ऑन पैसिव का अभी तक की जर्नी बहुत खुश रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें एक पॉजिटिविटी है और जेन्युइनिटी है। पूजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उन्होंने कमिटमेंट की थी, और आज इस वेबिनार में ही आप देख सकते हैं इनका गले में टॉन्सिल्स हैं और तबीयत ठीक नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूजा जी कुछ एक्सपीरियंस आप बताइएगा, जो आपका हैदराबाद ट्रिप जो रहा है, कंपनी की तरफ से आपको इनविटेशन मिला, जो कि आई थिंक ऑनर की बात है बड़ी आपके लिए, और ये कैसे हुआ और इसके बारे में आपकी वहां पर क्या आपके साथ बिहेव किया गया कंपनी की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, और कैसे आपको वेलकम किया गया, काइंडली वो जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एग्जैक्टली ये सच्ची में मेरे लिए बहुत हॉनर की बात था, और वो ये लास्ट मोमेंट इंस्टेंट बात था। ऐसा हो गए थे कि मुझे एंड तक नहीं पता था कि जाना है, और ऐसा हो गए थे कि स्टाफ्स को शायद मेरी ईमेल आईडी मिली थी, और मेरे को 2:30 को मेरे को कॉल आई थी कि उनको लगा मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ और मेरी डिस्टेंस 1.5 आवर लगती है, तो कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन थे उधर। और लकीली 2 डेज पहले मैं जबलपुर से मेरी मम्मी के घर मैंगलोर आई थी। जब उनका कॉल आए थे, मैंने बोला कि हाँ मैं तो आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तो मैंगलोर में रहती हूँ, क्या पॉसिबल रहेगा कि हैदराबाद का इतना जल्दी अरेंजमेंट्स हो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें तो लगा था कि हैदराबाद में ही हो आप ऐसा। तो उधर कैंसिल भी हो गए थे जाने का, लेकिन उसके बाद ऐसा हो गई कि अचानक से कि बिकॉज इवेंट 5 o'clock के था, दिलोन सर 5 o'clock आए थे, एक इवेंट रखा गया था उनका वेलकम के लिए ये सब। अचानक से उसके बाद मेरे को फिर से कॉल आया कि आपका टिकट हम लोग कंफर्मेशन करेंगे, और उसमें इद्रिस सर और जूली मैम तो लाइक हेल्प किए थे इन टर्म्स ऑफ टिकट्स मिलने के लिए सब। और बहुत क्विक थे हैदराबाद की स्टाफ, बिना डिले वो लोगों ने टिकट्स बुक किए थे, और 4:30 को मेरे को कंफर्मेशन मिला था कि मैं जा रही हूँ। और 4:30 से लेके 5 o'clock मेरे को 6 o'clock एयरपोर्ट पहुंचना था, और मेरे घर से एयरपोर्ट 45 मिनट्स की रास्ता है। तो बहुत हेक्टिकली हम लोग ने अरेंज करके चले गए थे उस दिन। बट बोलते हैं ना कि जब आप कहीं एक जगह पे जाओ तो एक तसल्ली रहती है, हम अपने घर में ही हैं। वो तसल्ली था हैदराबाद पहुंचने से लेके मेरे उधर से डिपार्चर होके घर आने तक, बिकॉज कहीं भी 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि स्टाफ लोग कोऑपरेटिव नहीं है, या उधर का कोई माहौल ऐसा था कि नहीं ये गलत है। कभी एक पॉइंट के लिए भी नहीं लगा, और ये लगा ही नहीं कि मैं घर से बाहर आई थी। सबसे पहले जब मैंने पहुंची थी उधर ऑलरेडी स्टाफ आ चुके थे, और हमें पहले होटल लेके गए थे। मैं 12 o'clock को पहुंची थी रात को, और 12:10 को हम लोग ऑलरेडी हैदराबाद ऑफिस में पहुंच गई थी। 12:30 से मीटिंग था, तो मेरे को उधर की स्टाफ मानसा और सोनल ने पूरा ऑफिस दिखाए, और लाइक फोटो से ज्यादा एक्साइटमेंट था जब मैं लाइव देखी थी, बिकॉज फोटो में भी ठीक है, फोटो में देख के हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन वो 5 floors जो जिस वे से इंटीरियर बनाया है, जिस वे से क्लीनिनेस एक मेंटेन किया गया है, और एक डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारा इधर कंपनीज को मैं विजिट की हूँ। मैंने पर्सनली ऐसे HR वर्क की हूँ 12 years का, और
एक मेलिंग एंड मार्केटिंग कंपनी में भी वर्क की थी, गो डायरेक्ट बोल के, और उसके बाद डॉक्टर बत्रास में थी एज HR। तो एक मैं एनवायरनमेंट देखी हूँ, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट देखी हूँ कैसा होती है, ठीक है। एक टेबल में वो लोग मैक्सिमम अरेंज करते हैं, अच्छा इसमें 2 टेबल, दो सिस्टम आ रही है, नहीं हम लोग 4 इसमें ऐड करेंगे। वो कंजस्टेड रहती है, बहुत सारा हौच पौच के साथ वर्क होती है। बट एक ऑन पैसिव ऑफिस में जब देखे तो ऐसा लग रहा था क्यों ना मैं उधर जॉब के लिए ज्वाइन करूं, बिकॉज इस वे से वो सिस्टमैटिकली था, एक सिस्टम के बीच में दूसरा सिस्टम इतना अच्छे से गैप मेंटेनेंस, क्लीनिनेस और जो जो चाहिए उधर हर एक इक्विपमेंट्स उधर होना उनके लिए, भले वो कैफेटेरिया क्यों ना हो या उनका स्पेस क्यों ना हो। और जब सेमिनार स्टार्ट हुआ था सर के साथ तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ उन्होंने जो जो अपडेट्स दिए, और सोनल और मानसन ने जो जो अपडेट्स दिए थे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि, और मेन सबसे ज्यादा है, हम लोग बोलते हैं कि यूजुअली ये माना जाता है कि बाहर की एक कल्चर है कि आप किसी को भी मिलो, आप जानो या नहीं जानो, एक हाय हेलो होती है, आप सामने देख लिया हेलो बोल देते। मैंने ये कल्चर हैदराबाद ऑफिस में देखी हूँ। पहली बार हम मिले थे लेकिन कोई ऐसा स्टाफ नहीं थे आपको ग्रीट नहीं किए हैं, हर स्टाफ हेलो हाय, और वो स्माइल के साथ था, एंथुसियाज्म के साथ था। और वो कल्चर समझ में आती है कि कितना वेल मैनर्ड थे वो, एक रेस्पेक्ट जो वो लोग गेन किए हैं। प्रोबेबली वो ऐसा नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता था कि ये कल्चर इंडिया में आए। एंड सेकंड चीज, जब उधर मैं बहुत एक्साइटेड थी, पूरा वेबिनार खत्म किए थे, उसके बाद हम लोग को होटल वापस आए, और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पास टाइम था बिकॉज हम लोग का शाम का इवनिंग का 6:30 का फ्लाइट वापस बुक किया गए थे। और मेन चीज उधर जो कुछ चीज का जो ध्यान दिया गया है, ये लोग सोचेंगे कि ये सब का बात क्यों करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज जो है ना वो मैटर करती है, बिकॉज एक प्राइवेसी होती है। मैं किसी को, वो 10 मेंबर्स जो आए थे उनकी पर्सनल लाइफ मैं नहीं जानती हूँ, नहीं वो मेरे को पर्सनल लाइफ जानते हैं, तो स्पेस हम लोग के लिए तब पर्सनली इंडिविजुअली हर एक का होटल्स बुक किया गया था, होटल रूम अलग अलग थे, ऐसा नहीं कि सिंगल होटल में सिंगल रूम में गर्ल्स को सब साथ में कर दिया, बॉयज को सब साथ में कर दिया, बिकॉज ये कॉर्पोरेट में यूजुअली होती है। अच्छा गर्ल्स 4 जन जा रहा है, एक रूम में एडजस्ट कर लो या 2 रूम में एडजस्ट कर लो, इधर ऐसा कुछ नहीं था। हर एक को एक रेस्पेक्ट लेवल अलग ही थे, रेस्पेक्ट लेवल अलग ही थे, और ये हर फाउंडर्स को वैसा ट्रीट करते हैं उधर कि वो रेस्पेक्ट दे के लेना जानते हैं। ये कल्चर बहुत कम होती है। एंड थॉट्स आओ या ये सोचूं मैं, ग्लोबली जो हम लोग इतना लोग जुड़े हैं, आज के दिन हम कंट्री नहीं सोचते, पर्सनली हम सोचे आज के दिन हर फाउंडर जो ऑन पैसिव एज सर के विजन के साथ जुड़े हैं, कंट्री नहीं सोचते हैं। आज के दिन वसीम जी आपको हेजिटेट नहीं होगा कि इंडिया का वेबिनार में आऊं कि नहीं आऊं, ऐसे ही और सेम चीज हमें होती है कि किसी को हेसिटेट नहीं रहते हैं, हम लोग पाकिस्तान वेबिनार जाए या बांग्लादेश वेबिनार जाए या कनाडा वेबिनार जाए, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ऐसा सर ने बिल्ड किया, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो उनकी कॉन्सेप्ट्स और ये बहुत यूनिक है, एंड एक जेन्युइनिटी जो है, और स्टाफ लोग ऐसा रिग्रेट करते हैं, सोचो कि हमारे वजह से सर ने कमिटमेंट कर दिए हैं, और हमारे वजह से सर का कमिटमेंट इन केस ऊपर नीचे नहीं हो, ऊपर नीचे हो गई तो सर को सुनना पड़ेगा, उनका वो दुख है। तो वो लेवल सोचो कि कोई स्टाफ, अच्छा मैं काम कर रही हूँ, मेरे को मेरा सैलरी मिल रही है, लेट हो या ना लेट हो तो मेरे को क्या करना, सर तो सुनेंगे ना, उनको सुनने दो। ये थॉट होने से ज्यादा उधर वो रिग्रेट का थॉट है उन लोग में, बिकॉज हम लोग को डिलीवरी करना है मतलब करना है। हम लोगों ने परसों का मीटिंग में देखा, उनको चाहिए था कि आज ही लॉन्च हो जाए, वो लोग जाने वाले रेडी नहीं थे, बिकॉज वो एक डेडिकेशन जो है ना, कोई और कंपनी में शायद से मिले 3-4 डेज कंटिन्यूशन में वर्क करो, नाइट भी उधर डे भी उधर। और जिस दिन हम लोग हैदराबाद पहुंचे थे सबसे शॉकिंग था कि सपोर्ट टीम का टाइमिंग से 11 o'clock,
और 1:30 को जब 11 o'clock का टाइमिंग से जब 12:30 को मैं नीचे फ्लोर में पहुंची थी, तभी भी वो लोग वर्क कर रहे थे सपोर्ट टीम, ताकि उनका सपोर्ट डेडिकेशन से इसमें समझ आती है कि इनको कितना जल्दी है कि एक लेवल फिनिश करके दे दे, ताकि लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, तो कोई वसीम जी, तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी जरूर। जी आपने परसों सर से बात किए हो हाँ जी, फेस टू फेस वेबिनार में। जी बिल्कुल, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होंगे वेबिनार में उनके साथ सबके सामने, जी वेबिनार। तो वो फीलिंग्स आप प्लीज बता दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम जब उनसे शेयर की थी ना फीलिंग्स, मैं वो फीलिंग्स आज तक नहीं भूल पाती हूँ। सेम चीज मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब बात किए थे आपने कैसा फील किया? जी वो फीलिंग तो ऐसी थी ना कि क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी बात कर चुका था टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर। अच्छा, मुझे इससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने जो बात की है यहाँ पर जो एक फैमिली की तरह हम हैं, यहाँ पर इससे पहले किसी कंपनी में ये चीज़ नहीं देखी। पहले इस सबका जितने भी बिजनेस मॉडल में वो काम करते थे, लेकिन आपस में कोई अब इंटरेक्शन नहीं होता था। यहाँ पर जब इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं, अब सबको पहचानते हैं, चाहे हम वेबिनार के थ्रू देख रहे हों तो ऐसे लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर ही हैं। जैसे कि आप मेरे वेबिनार में आई और इस तरह हम आपको देखते हैं वेबिनार्स में। इसी तरह मरीना से बात होती है, चार्ल्स से बात होती है, डॉक्टर बिल विलियम से बात होती है। ये सब मुख्तलिफ कंट्रीज में हैं और कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया। अब इससे पहले मेरी फरवरी में मेरी बात हुई थी आयश मुफारे से। मैंने जस्ट एक ईमेल की थी और मैंने कहा था आई वांट टू टॉक विद यू। तो मैं सो रहा था तो मुझे कॉल आ गई। जब कॉल आ रहा था मुझे पिक्चर नजर आ रही थी, तो मेरे और अमेरिका का नंबर था, मेरे जहन में बात आई कोई वैसे ना कोई जैसे फाउंडर होता है कोई लगा देता है, लेकिन आवाज़ तो आपको पता है सर की सब पहचानते हैं। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई है। तो उन्होंने काफ़ी 45 मिनट्स तक मुझसे बात की और उन्होंने एक बात जो शुरू में कही, उन्होंने ये बात कही कि मैं उर्दू और हिंदी बोल नहीं सकता लेकिन खाता हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहते हैं वो इसलिए कि मैं मेरे घर के नज़दीक एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और उसका नाम फैसल है और फैसलाबाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और वो काफ़ी एक्साइटेड थे, खुश थे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान विजिट करूंगा और इस तरह की कुछ बातें की थी। लेकिन उसके बाद फिर वेबिनार में जो मेरी मुलाकात हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी। इसमें डॉक्टर इदरीस मोदी जी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे उनसे कनेक्ट किया। आपको पता है एलसी लीडर की मीटिंग में जाना काफ़ी मुश्किल होता है, सब ख्वाब ही देखते हैं। वहाँ से आप जो भी कन्वर्सेशन हुई आपके सामने थी और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में काफ़ी होपफुल बात की है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप यहाँ पे काम करें इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट आप लोगों का साथ भी रहेगा इंशाल्लाह। हमने आगे ही बढ़ना है क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इस हवाले से ऑन पैसिव के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। इंडिया में लोग ज़्यादा इसलिए जानते हैं कि वहाँ पे एक प्रोडक्शन ऑफिस है हैदराबाद में, तो लोग इसलिए ज़्यादा वहाँ पर ज्वाइन हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन इस पर स्कैटर्ड है। मैं उनको एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर भी कॉर्पोरेट ऑफिस बन सके और लोग यहाँ से बेनिफिट उठाएं। वही फायदा यहाँ पर जो भी म्यूचुअल बेनिफिट की बात होती है, हम जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं, आप भी अगर करती हैं लोगों के फायदे की बात करती हैं, तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। अच्छा पूजा जी, ये बताइए कि आप वहाँ पर जो इंडिया की लेडीज है वो कैसा काम कर रही है वो फाउंडर बनकर उन पैसे ज्वाइन करके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या वहाँ पे काम हो रहा है? लेडीज हैं, आप तो नजर आ रही हैं, इसके अलावा बहुत सारे बिकॉज पहले ऐसा होती थी, लेडीज अभी भी है, पहले भी थे, लेकिन वो सामने नहीं आते थे। एग्जैक्टली। इस मामले में मेरे को हर टाइम खुशी होती है कि इंटरनेशनल लेवल में इंडिया से मैं फर्स्ट लड़की थी जो रिकॉग्नाइज मिली थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रीजन बस और बस मोटिवेशन मिला था सिमिलर काइंड ऑफ पीपल से। जैसे कि इदरीस सर जितना मोटिवेट मेरे को इंडिया से ये किसी ने नहीं किए होंगे स्टार्टिंग में। उनकी काम ही वही है कि मोटिवेट करके छोड़ दो ताकि वो आगे बढ़ते जाए, एंड यही सपोर्ट होती है एक दूसरे को।
जी बिल्कुल। भले वो इंटरनल कंट्री हो एक्सटर्नल कंट्री हो, एक सपोर्ट जब आपको मिलती है और नॉलेज जब मिलती है वो बहुत यूनिक रहती है और एक्सपीरियंस बहुत यूनिक रहती है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा चीज शेयर की है वसीम जी, आइडियाज के रिलेटेड और इसके रिलेटेड शेयर करते हैं, नॉलेज बढ़ती है और एक अंडरस्टैंडिंग आती है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब हम लोग का ट्रस्ट में बदलते हैं जी और यही चीज ऑन प्लस सिखाता भी है कि आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ट्रस्ट में कब बदल जाती है आप समझ ही नहीं पाते हो। एक चीज रहती है, मैं हर एक को एक बताती हूँ, आप डेट्स में मत जाओ, एक उम्मीद आ जाती है माइंड में, हाँ ये डेट में होगा, ये डेट में होगा। उससे अच्छा वैल्यूज को सोचो, आपको करंट में क्या वैल्यूज मिल रही है, वो वैल्यूज की वजह से आप खुश रहते हो। तो आपको वो डेट कभी भी आ जाए वो वैल्यूज याद रहेगा, तो आपको कभी बाउंडेशन नहीं होगा आपका ग्रोथ में, इंडिविजुअल की ग्रोथ में, कोई भी हो। और रही बात लेडीज की, तो बहुत सारे लेडीज अभी सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, बात करते हैं, वेबिनार्स हैंडल करते हैं इंडिविजुअली और अलग अलग प्लेसेस में आते हैं, करते भी है और होना भी चाहिए। रीजन क्या है, चलो मैं बैकएंड में वर्क कर रही हूँ, लेकिन सामने जब नहीं आऊंगी, एक कहीं ना कहीं एक जो मेरे वजह से 10 लोग जो कॉन्फिडेंट, एक बोला जाता है कि एक गर्ल घर को संभाल सकती है, तो ऑन पास एक घर ही है मेरे हिसाब से, ये घर को संभालना है तो एक फीमेल का वॉइस होना भी जरूरी है। एंड हम लोग एक फैमिली जब बात होती है, हर टाइम मैं बोलती हूँ कि जैसे इक्वल राइट्स हर एक को है, हर एक चीज में है। इसमें सिंपल सी बात ये हो जाती है ना, अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग शेयरिंग्स होती है, भले वो गर्ल क्यों ना हो, बॉय क्यों ना हो। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। पूजा जी, आपने एक चीज नोट की होगी, इससे पहले कई बिजनेस मॉडल आए हैं, वहां पर आपका सोचने का अंदाज कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर आपकी सोच ही चेंज हो गई है क्योंकि आप विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और यहाँ पर फीलिंग और है। तो बिजनेस मॉडल तो कई पहले आए, लेकिन हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर पैसे के बारे में कोई नहीं सोचता, यहाँ पर दूसरों के बारे में सोचता है और उसका फाइनेंस खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी पाकिस्तान में लेडीज हैं जो कि जिनमें एबिलिटी है आपकी तरह, वो आगे काम कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर वो आपके साथ, मैं उनको कनेक्ट भी करवाऊंगा ताकि आप लोग मिलकर काम करें पाकिस्तान की लेडीज के साथ मिलकर। तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आई विल थैंकफुल टू यू। हाँ वसीम जी, मैं ये मैसेज तो जरूर दूंगी, मैं कोई भी कंट्री हो, कुछ भी, मैं कभी मैटर नहीं करती है मेरे लिए, और सबसे पहले गर्ल्स के लिए है तो मैं हर टाइम उनके लिए खड़े रहूंगी। और इनकेस उन लोग कंफर्टेबल नहीं है ये प्लेटफॉर्म में कि सामने आने का जेंट्स के साथ और ये सब, हाँ बिकॉज मैं भी बहुत हेसिटेट थी, मैं बहुत लाइक मई तक मैं कहीं सामने नहीं दिखे होंगे आपको, लेकिन मई के बाद जो एक बूस्टिंग मिली है, मैं अलग वे से चेंज हुई हूँ। हाँ, इन केस उनको लगती है कि अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए और धीरे धीरे वो लोग ग्रो हो पाएंगे, तो मैं इधर आपको पक्का 100% ये यकीन दिला सकती हूँ कि उनके लिए अलग वेबिनार सेशंस कंडक्ट करना चाहोगे आप गर्ल्स के लिए, तो मैं उधर प्रेजेंट रहूंगी, हर एक चीज उनको गाइड करूंगी। जी बस मैं नहीं है इसमें, है ना, आपको बहुत सारा इंडियन गर्ल्स आएंगे सामने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप शाहिद को जानते ही हो, जी, संगीता बिल्कुल। विश्वास को जानते हो, और भी लड़की लोग हैं हमारे ग्रुप में, नजमा मैम है, सोमलता मैम है, ये सब आपको एक सपोर्ट बन के हम लोग आएंगे। इफ गर्ल्स आगे आना चाहते हैं तो हम उनके लिए सेपरेट वेबिनार्स कंडक्ट करना वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको ग्रूम करना हम लोग कर सकते हैं, वो सपोर्ट हम देंगे आपको जरूर। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपका हमने काफ़ी टाइम ले लिया, और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट भी आइंदा वेबिनार में बुलाएंगे, और लेडीज़ वेबिनार भी होंगे, लेडीज़ से आपका इंटरेक्शन करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज का वेबिनार हम यहीं पर क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वेबिनार में मुलाकात होती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।